How to tune into your intuition. So, this is going to be the topic of our video today. Before starting on with the topic, I would like to say that I have been on the spiritual journey for like 6 7 years. Um, and I mean, consciously, unconsciously, everybody is on a spiritual journey, but very consciously, I have been on this journey for like 7 8 years. And yeah, and I have had made some decisions in my personal life based on intuition. Okay, so I'm just here to share my experience with you and how it really works, what really is intuition and how it really works. Sadly, our schools don't tell us beyond our five senses. They teach us that there are five senses. They teach nothing else more than that. But there's more to life, there's more to us humans. Okay, so intuition is called as sixth sense, is known as third eye as sometimes, so let's talk about that, what it is really, and how can we really tune into the intuition. So there were many people out there who were really wanting to have some practical tips to tune into their intuition, right? So I thought that let's just do a video around this topic, because I had many videos where I was talking about intuition, but I just never thought, just never share about how to tune into your intuition. While I was walking my spiritual journey, I just never tried to hone in on this hone in on my sixth sense. I just never thought of doing that, honestly. Okay, but as I walked my spiritual journey, it was just a consequence. Okay, so yeah, spiritual gifts are really just consequence of you walking your spiritual journey. What we really need to do more or less on our spiritual journey is to purify ourselves. Okay, is to move towards love, is to understand love. Human understanding of love has become very, when I say love, many people would just think of a relationship, between a male and a female, or so the understanding of love has become very small. Yeah. So your spiritual journey, when you walk a spiritual journey, it's more about moving towards love, purifying yourself, coming into that state of unconditional love, and yes, still balancing that out with boundaries. Even boundaries come from unconditional love, right? I mean, um yeah, somebody was really, seen, he was just really gone, at the bottom of the sea, has touched the bottom of the sea, who has really opened his heart, his or her heart completely, can really know where to put boundaries, and that boundaries that don't come from self-preservation, doesn't come from, the egoic stance, but those boundaries come from a space of God within you. It comes from that space of unconditional love within you. I had a difficult time, there was a time when I was going on my spiritual journey. I was opening my heart. You have to really open your heart. And yeah, I had trouble making boundaries for myself, you know. And yeah, but gradually I learned that, it even boundaries come from a space of love. So spiritual journey is very much an experiential journey. Okay, you have to, I can come here and talk about it, but you have to have some experiences on your spiritual journey, right? And those experiences doesn't mean that if you sit in meditation and, you see skies and you see solar systems and stuff like that, or you start seeing some light or something when you sit in meditation. No, I'm not talking about those experiences. Your involvement with life, the more you involve with yourself, the more you throw yourself in situations, the more you get to know that who you are not. So my whole spiritual journey has been that. I have thrown myself in situations, and I have, so when I used to have these intuitive guidance,
you know. So they were very scary, of course, you know. They are really scary because it's beyond logic, it's beyond me, okay. Like, I know how I behave, okay. I know I am a little emotional person, so I know in situations how I'm gonna behave, you know. I'm gonna maybe melt it away in my emotions, and I would just act according to those, okay. Or I am more or less, you know, I know I am what things I'm guided in life by, okay. What are my strengths and weaknesses, I know somewhere, right? But intuition is beyond that, okay. Intuition is beyond myself, beyond what my mind knows about me, okay. So we form our perception of ourselves through our conscious mind, but there are many minds, you know, beneath it: unconscious mind, subconscious mind. And you're so much bigger than you think you know yourself, okay. And intuition comes from that place, okay. Intuition comes from a place of beyond, okay. It comes from a, you think you know yourself. Okay. And intuition is just beyond you, what you think you know, okay. Yeah, it's crazy, it's completely crazy, okay. And whenever intuition comes in, there's gonna be a whole lot of fear that comes in, but you gotta do it anyway, you gotta follow your intuition anyway. I mean, इंट्यूशन आना एक अलग चीज़ होती है, और इंट्यूशन को फॉलो करना एक बहुत ही एक्ट ऑफ करेज होता है, लिटरली. बट you know, we are told that, I don't know, world has taught us that, you know, to world has really taught us कि अगर हमें, you know, कुछ act of courage करना है, so we have to really prep ourselves, you know, and just maybe, I don't know what, but you know, to follow your intuition, that act of courage, that comes from surrendering. Literally, it comes from sitting in yourself. It comes from surrendering. It doesn't mean that you have to really prep yourself and just, you know, you know, it, yeah, it's very silent. Intuition is very silent. Fear is the loudest. Intuition is the silence. And yet you just follow that soft intuitive voice in you, you know. And it may look like an act of courage from the outside to other people, but from the inside it feels like a complete surrender, okay. And okay, so in the beginning I was very yeah, when I used to have my intuitive guidance on my spiritual journey, in the beginning I used to be very, I thought I was weird. I also thought of myself I'm very hallucinatory maybe, and I don't know, I don't know. I thought that I have this some fantasy place in my head, and I am a daydreamer. I am a daydreamer. I मुझे कभी क्लास में भी ध्यान नहीं लगता था, honestly. It's just that when I grew bigger, grew older, I saw that my friends are like paying attention because that's how it is, and so I also started paying attention in classes. But मेरा बचपन से कभी क्लास में ध्यान नहीं लगता था, बिल्कुल वो तारे ज़मीन का जो ईशान खत, क्या नाम था उसका, ईशान खन्ना खत, I don't know what. So जो तारे ज़मीन का ईशान था, I could just relate to that guy, यार. So I was very much a daydreamer, and I really used to get very frustrated in class and everything. And I, of course, always had my fantasy land, you know, because I really found the world very boring. I really found the world, I found school very boring, I found people very boring. I don't know why, but they're not even boring, they're very annoying, and you know, they are very frustrated with themselves. That's how I saw the world, okay. छोटी छोटी बातों पे, you know, they lose their shit. So that's how I started seeing adults, and you know, yeah, I felt that I'm a little gentler in my way of being, and people are a little, you know, not that gentle with themselves also. I mean, what you are with yourself, you're gonna be like that with outside people, right? So yeah,
that I really found the world very boring. So when intuitive guidance used to come to me, I used to think that, of course, I am in my fantasy land, and maybe something is happening, and I shouldn't bother myself much. But I was just so bored of life, and I was just so extremely bored, yeah, extremely bored. I can't tell you. It's extremely bored to a point where I was frustrated, like how dumb and dull this life is. So those were my feelings, okay? And of course, I didn't knew it then, but as I went on my spiritual journey, अब जब मैं आप पीछे देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि okay, that's how I felt. That's exactly how I was, and I just never trusted my own feelings, okay? I was very much taken away by other people's opinion of me. So people thought certain things about me, and they told me, and I believed that. And yeah, I'm just so sorry to myself that I believed other people's impressions of me. And I won't say that it's their fault or something, and I cannot really blame them, because at the end of the day, you can say that sometimes लाइट को भी ना पोलैरिटी चाहिए होती है, लाइट को भी डार्कनेस वाली पोलैरिटी चाहिए होती है, लाइट को भी अपने आप को समझने के लिए डार्कनेस चाहिए होती है. सो समवेयर देयर इम्प्रेशंस ऑफ मी पुश्ड मी टू अंडरस्टैंड हु आई एम. यस, कई बार मुझे डिले भी हुआ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा मैं मान के बैठी थी व्हाट अदर पीपल्स ओपिनियंस वर ऑफ मी, so yeah, I mean, you know so yeah, I had, of course, I saw delays as well, and sometimes they even fastened up my journey as well. So whatever it is, but yeah, so other people's opinions and impressions made me feel that I was always a little indifferent person. So I had trouble trusting my own intuitive guidance, right? So, and yeah, I mean, there were very logical people around me all the time, okay? My friend circle and my family, they all very logical people around me, and I had really trouble yeah, trusting myself with my intuitive guidance. I really thought that I was just hallucinating and nothing else. So, but Sadhguru, my guru, he used to always say that spirituality is, you are a seeker. It's you have to experiment with life. You cannot just. It's not a belief, like a religious belief, or it's not an indoctrinized, some doctrine or something. So yeah, so when my first, I mean, of course, I used to have short intuitive guidances all my life while I was growing up, but I never trusted them. Yeah, and I cannot really exactly say that this is the age when I started having it or something like that. But yeah, when I look back now, I realize, oh my god, that was an intuitive guidance and I just didn't follow it. Oh my god, that was that. So yeah, and I look back and I see all those things. So yeah, so when my first intuitive guidance came to me, I just thought of experimenting with it rather than just being very particular about it. I said, let me just experiment, let me just see it. So as I said, I was extremely bored and frustrated with my life, and of course I was um, when I was younger, I was really bored, extremely bored and frustrated with my life as a child, okay? Because I'm a big energy. I am a very feminine energy. So feminine needs to do very creative work, okay? They are very creative. And मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पोटेंशियल का कोई काम ही नहीं है. मुझे ऐसा लगता था बिकॉज स्कूल में बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन होता था, and yeah, I used to sit with a lot of books, but then एग्ज़ाम्स आते थे, एंड एग्ज़ाम्स में यू आर सपोज टू जस्ट राइट जो आपने पढ़ के गए हो, या फिर एग्जैक्टली वही. बट आई वॉज अ रिसर्चर एट हार्ट, आई वॉज अ क्रिएटिव पर्सन एट हार्ट.
So I used to sit with a lot of books and used to read, and मैं साइंस को भी कनेक्ट करती थी स्पिरिचुअलिटी से. और मैं कई बार ऐसा होता था कि मैं कोई बुक पढ़ रही होती स्पिरिचुअलिटी की, एंड देन आई यूज्ड टू रीड इट एंड देन यूज्ड टू बी लाइक, ओ माय गॉड, ये तो मैंने खुद एनालाइज करके कभी निकाला था कि. एंड used to really match up science and spirituality together at times sometimes. जो laws of physics थे कई बार, as to match it with spiritual life. तो I was always that kind of an energy, creative energy. So I was deeply bored and frustrated with my life. So whenever my first big intuition came into my life, it was big because of the choice that it was. Okay, I mean, हमारी ह्यूमन लाइफ में 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत हम मानते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं. जैसे कि करियर, जैसे कि शादी, एजुकेशन, डिग्रीज़. ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बहुत बड़ी मानते हैं. तो अराउंड ऑल दीज थिंग्स मुझे कुछ इंट्यूशंस आई, एंड माई फर्स्ट इंट्यूशन दैट आई हैड वॉज बिग in terms of what is, जो ह्यूमन बींग्स जिसको बहुत बड़ा मानते हैं. मतलब मैं अब नहीं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें बड़ी हैं और कुछ चीज़ें छोटी हैं. कुछ एस्पेक्ट्स ह्यूमन लाइफ के बड़े हैं और कुछ एस्पेक्ट्स ह्यूमन लाइफ के छोटे हैं. अब मैं ऐसे नहीं मानती हूँ. When I've covered my spiritual journey and now know things like, yeah, it's बस ये ह्यूमन सोसाइटी ने ऐसे बना रखा है. तो खैर, so when I had my first intuition, so I thought, let me experiment it. And that courage really came from that I felt deeply bored and frustrated, बिकॉज मुझे हमेशा मीनिंगलेस लगता था सब कुछ. मुझे लिटरली हर चीज़ मीनिंगलेस लगती थी. मुझे लगता था कि मेरे मीनिंग का कुछ है नहीं. मैं कुछ मीनिंग में क्या कर सकती हूँ. हाउ कैन आई रियली क्रिएट मीनिंग इन माई लाइफ. आई ऑलवेज यूज टू थिंक लाइक दैट. I always wanted to create something meaningful in my life, because feminine energies थोड़ी सी ऐसी होती हैं. I'm more in my feminine energies. So yeah, so whenever my first intuition came, so since I was completely bored and frustrated, I said, let me do this. And I said to my logical mind, let me experiment, yaar. ठीक है, you don't tell me it's illogical, it's this and that. So I told my logical mind, you just shut up and let me do my thing, because let me just see. Okay, let me just see, and let's just see if things go where they go. And yes, I saw results. I started seeing results. Okay, and then of course my courage that came, and it was easier next time to follow my intuitive guidance. And again, it was easy to follow my intuitive guidance. So yeah, that has been my journey. Okay, I have been on this path, and I have been following my intuitive guidance for a while. So मुझे सबसे पहले अपनी जर्नी का थोड़ा सा डिस्कस करना था कि how my journey has been. Okay, and now let us just come to certain practical tips that I can really give you. How can you work on that. Honestly बोलूँ तो मैंने कभी वर्क नहीं किया. It just happened as a consequence of walking my spiritual journey. तो मैंने हमेशा इस पे वर्क किया कि मैं अपने आप को प्योरीफाई करूँ. मैंने अपने आप को समझने की कोशिश करी. That's how I started doing it. And जब आप अपने आप को समझते हो, जैसे जैसे ज़्यादा समझते हो, फिर आपको आप it's just so important to see yourself, to observe yourself. Okay, तभी intuition को हम third eye बोलते हैं. Okay, it's a third eye. Eye means to watch, to observe, to be aware, and that's all you have got to do. So spirituality बहुत सिंपल है, बट ये सिंपल चीज़ें करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें ईगो और हमें मैट्रिक्स और हमें प्रोग्रामिंग ऐसी दी जाती है, हमें माया ऐसी पढ़ाई जाती है, ऐसी प्रोग्रामिंग करी जाती है. यू डू इट द हार्ड वे.
मोस्ट ऑफ अस, मेरे गुरु सदगुरु हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बैठ ही नहीं पाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, कैन यू सिट स्टिल फॉर लाइक 5-10 minutes? कैन यू? आई स्टिल कैनॉट डू इट. ओके, I feel that I have had some good milestones on my spiritual journey, but if you ask me that I can sit still, for like 5-10 minutes, I mean, maybe I can. I'm getting a little better at being still now, and I'm still learning divine stillness. I'm still, getting more and more into towards silence. मुझे अब silence अच्छा लगता है, मुझे अब stillness अच्छी लगती है, पहले मुझे नहीं लगती थी. But as you walk your spiritual journey now, it's a little different. But तो spiritual journey बहुत simple है, but ये simple चीज़ें करना इतना मुश्किल है क्योंकि हमें हमेशा प्रोग्राम किया गया है to do it a little difficult way. ओके, ईगो को हमेशा प्रूव करना है अपने आप को, दूसरों को प्रूव करना है, ठीक है, इसलिए वो हमेशा मुश्किल चीज़ें पकड़ेगी. ओके, बिकॉज उसको वैलिडेशन चाहिए. ईगो इज़ लाइक वांटिंग लव फ्रॉम आउटसाइड. ओके, and I'm sorry, but human beings nowadays, they don't know how to love themselves. So of course you cannot really get love from outside. Yeah. So where was I? Where was I यार? थर्ड आई के बारे में बात करी थी. इंट्यूशन थर्ड आई होती है. आई मीन्स टू वॉच, टू ऑब्जर्व. तो मैं आपको एक हिंदू मिथ का एक एग्जांपल देती हूँ. तो एक बहुत फेमस स्टोरी है एक हिंदू मिथ में कि शिव जी कहते हैं हमेशा ही हैज़ हिज थर्ड आई ओपन एंड he knows beyond. Okay, he knows what's going on beyond. तो शिव जी बैठे होते हैं ध्यान में और भस्मासुर आता है. भस्मासुर एक डीमन, एक राक्षस होता है. तो उसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं होती है. वो तपस्या तो करता है, बट वो तपस्या इसलिए करता है, वर्शिप इसलिए करता है बिकॉज उसको गिफ्ट चाहिए होता है. उसको चाहिए होता है कि मैं जिसको भी छूँ वो इंसान भस्म बन जाए. ठीक है, भस्मासुर को ये चाहिए होता है, तभी वो भस्मासुर है. ऑफ कोर्स ही इज़ अ डीमन. एंड देखा जाए तो आजकल के इंसान भी कुछ कम नहीं है. मतलब हम सब कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना इसलिए करते हैं कि भगवान हमें ये दे दो, हमें वो दे दो. तो आजकल शायद पावर ये नहीं है कि हम जिसके सर पे भी हाथ रखें वो मर जाए या कुछ भी. पर आजकल की पावर्स तो शायद ये कि हमें गाड़ी दिला दो, हमें घर दिला दो, हमें ये दिला दो, हमें हमें आई डोंट नो व्हाट, हमें जॉब दिला दो. बट ठीक है, कहीं ना कहीं हम इतने भी बुरे नहीं हैं ह्यूमन बींग्स. आई मीन हमारा सर्वाइवल कहीं ना कहीं है. गाड़ी भी आजकल एक सर्वाइवल की तरह है. जॉब भी चाहिए हमें, सर्वाइवल एट द एंड ऑफ द डे. सो शायद हम इतने बुरे नहीं हैं. भस्मासुर के जितने तो बुरे नहीं हैं खैर. सो या भस्मासुर जो था वो ये चाहता था कि मैं जिसके सर पे भी हाथ रखूँ वो भस्म बन जाए. तो महादेव उसको वरदान दे देते हैं. अब महादेव की जो तीसरी आँख होती है, जो उनकी थर्ड आई होती है, वो हमेशा ओपन है और वो ओपन रहती है. सो हमें ऐसा लगता है मैंने भोलेनाथ भी बोलते हैं, बट ही नोज़ एवरीथिंग. बट जब आप इंट्यूशन आपके अंदर आती है तो उसके साथ आपके अंदर ज्ञान भी आता है, वो विजडम भी आती है. और एक्चुअली जब आपके अंदर वो विजडम आती है तभी आपके वो गिफ्ट्स खुलते हैं. मैं हमेशा स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में यही बोलती हूँ कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको कोई ऊपर से, कोई अलग से, कोई आके भगवान जी कोई नहीं देखे जाते हैं. ये आप अपने आप ही इट ओपन्स. जब आपके अंदर वो ज्ञान, आप वो लेसन अनलॉक कर लेते हो, आपके गिफ्ट्स अपने आप खुलते जाते हैं. ठीक है, आप जितना अपने आप को प्योरीफाई करते हो, आप जितना अपने अंदर प्रेम लेके आते हो, आप जितना अनकंडीशनल लव में जाते हो, इट जस्ट ओपन्स अप फॉर यू. सो बट भस्मासुर अननेचुरली अपनी विजडम, वो बहुत ही अभी उसके अंदर विजडम आई नहीं है. उसने भी अपनी he hasn't gone through an ego death, nothing. He just wants some power, शक्ति. And yeah, तभी वो असुर था, तभी he was a demon. So
he wanted that bone, okay? And Mahadev gave him that bone, okay? Mahadev's third eye is open, okay? But he gave him that bone. So, you know, third eye hona bhi, sometimes it's a curse, because you see the most beautiful things, you see the most ugly things in the world, right? So he lets him. Why do you think he lets him? Because he knows how universe work. शिव जी को पता है यूनिवर्स कैसे वर्क करता है. शिव जी को पता है कि इसका बुराई का अंत तो बुरा ही होता है, ठीक है? आज नहीं तो कल, थोड़ा टाइम लगता है. लिटरली थोड़ा टाइम लगता है. सब कुछ अपनी डिवाइन टाइमिंग में होता है. और और मैं ये सिर्फ मैं एक बुक से पढ़ के नहीं बोल रही हूँ. मैं नहीं, एक वक्त था जब मैं नहीं मानती थी भगवान में, एंड इट वाज एक वक्त था जब मेरे को लगता था लाइफ बहुत अनफेयर है. मुझे लगता था कि यार, मैं बहुत सारे लोगों को देखती थी, यू नो, दे वर लिविंग ऑन स्ट्रीट्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड आई वाज ऑलवेज अ वेरी, यू नो, आई ऑलवेज हैड लिटिल compassion in my heart, always. So I used to get very sensitive around, you know, seeing कि यार, मतलब इतनी पॉवर्टी है, इतना इतना प्रॉब्लम्स हैं, तो ये भगवान जी कर क्या रहे हैं? वेयर द हेक इज़ ही? सो मैं हमेशा ये सोचती थी. तो यहाँ मुझे लगता था लाइफ बहुत अनफेयर है. बट जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअल जर्नी में गई और मैंने यूनिवर्स के लॉज समझे, स्पिरिचुअल लॉज समझे, मुझे समझ आया कैसे हर एक चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है. यू नो, हम एक टाइम और स्पेस के अंदर रहते हैं, एंड टाइम प्लेज अ रोल, यू नो. तो होती हैं चीज़ें. तो जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी में आओगे, आप ध्यान से देखोगे, लाइफ को समझने की कोशिश करोगे, तो आपको भी समझ आएगा. उसके लिए हम कोई एक वीडियो रख सकते हैं यूनिवर्सल लॉज के लिए, समझने के लिए. सो सो वी वर टॉकिंग अराउंड भस्मासुर. तो भस्मासुर को बूंद दे देते हैं शिव जी, और शिव जी को पता है यूनिवर्स कैसे वर्क करता है. तो उसके बाद शिव जी जाते हैं नारायण जी के पास, एंड नारायण जी जो होते हैं वो ही टेक्स अ फॉर्म ऑफ वेरी ब्यूटिफुल लेडी, ओके, एंड ही इंटाइसेस भस्मासुर, ओके, टू डांस विद हर. सो भस्मासुर ऑफ कोर्स थोड़ा इमेच्योर सोल होता है वो. इससे ही पता चल रहा है कि वो भगवान जी से क्या मांग रहा है, और वो भगवान जी से मांग भी रहा है, एंड और वो भगवान जी को ही उससे मारना चाहता था. तो भस्मासुर चाहता था कि वो अपना हाथ जो है वापस शिव जी पे ही रखे और शिव जी को ही ख़त्म करे, ताकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाए. सो दिमाग देख रहे हो आप? तो yeah, it may just look like it's very clever and he's very wicked and he's very smart, but he is not, you know. At the end of the day, innocent mind और innocent consciousness ही जीतती है. तो आई मीन एक पॉइंट था मेरे को ये सिर्फ स्टोरीज़ लगती थी, बट अब जब मैं ये स्टोरीज़ बोलती हूँ या सुनती हूँ, तो मुझे एक्चुअल में ये समझ आती है कि नो, हाउ दीज स्टोरीज आर रियली रियल, यू नो, in many ways. I mean, they are such an accurate representation of life. मुझे महाभारत भी बहुत अच्छी लगती है. महाभारत भी एक accurate representation of life है यार, है ना. मतलब बहुत सारी मूवीज़ ऐसी बन जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन जाती हैं जो बहुत ही अलग होती हैं, लाइफ से बहुत दूर होती हैं. लाइफ की डिपिक्शन नहीं होती, कम्प्लेक्सिटी नहीं दिखाती हैं, ठीक है. जैसे आज ह्यूमंस बहुत कम्प्लेक्सिटी में रह रहे हैं, वो खुद के इमोशंस और चीज़ों को नहीं समझते हैं, वो कम्प्लेक्सिटी नहीं दिखाते हैं, बहुत फैंसी चीज़ें दिखाते हैं, बहुत ऊपर सुपरफिशियल चीज़ें दिखाते हैं. स्टोरीज़ में, मूवीज़ में ऐसी कुछ मूवीज़ होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं, यू नो. अब तो मुझे लगता है फिर भी एक अच्छी आर्ट आ रही है मूवीज़ के अंदर भी. तो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो बहुत अच्छी भी हैं अनडाउटेडली. सो आई मीन मुझे बहुत अच्छी लगी थी. मैंने अभी एक कोच कार्टर देखी, दैट्स 2005 मूवी, बहुत अच्छी मूवी थी यार. सो it was very beautiful movie in that sense. You can watch that as well. So okay, so and then Narayan ji entice करते हैं भस्मासुर को. He comes in the form of a very beautiful woman, मोहिनी बन के आते हैं और वो अपना और उससे बोलते हैं कि तू मुझे कॉपी कर, ठीक है. मोहिनी बोलती है भस्मासुर को, just copy me, whatever I'm doing you do, we dance like that. So she keeps her hand on her head
एंड भस्मासुर भी अपना हाथ जो अपने खुद के हेड पे रख लेता है एंड देन ही बर्न्स डाउन टू एशेस. सो थर्ड आई एग्जिस्ट, राइट, बट उसके साथ साथ आपको एक मसल भी डेवलप करना पड़ता है. और इट्स नॉट लाइक डेवलप करना पड़ता है, आपके अंदर वो मसल पहले होता है, आप वो लेसन अनलॉक करते हो. आप जितना आप अपने अंदर अनकंडीशनल लव में जाते जाते हो, द मोर यू गो क्लोजर टू लव टू गॉड, द मोर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ओपन अप फॉर यू. ओके, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. आपको एक मसल डेवलप करना पड़ता है. वो मसल होता है नॉट टू एक्ट अपॉन एवरी थिंग दैट यू सी. ओके, तो आप सबसे ज़्यादा अगली थिंग्स भी देखोगे, आप बहुत ब्यूटिफुल थिंग्स भी देखोगे, बट एक एक काइंड ऑफ वैराग्य चाहिए होता है जो शिव जी के पास है. वो एक काइंड ऑफ अटैचमेंट चाहिए होता है जो शिव जी के पास है, तभी उनके पास इतने सारे गिफ्ट्स हैं यार. ठीक है, सो दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स, दैट्स हाउ यूनिवर्स वर्क्स, राइट. सो अगर आप अपनी इंट्यूशन को होन भी कर रहे हो तो एक विजडम हमेशा याद रखना, अगर, बिकॉज विदाउट विदाउट लव इन योर हार्ट, if you have these powers, your spiritual journey is very incomplete. Okay, spiritual journey is not about attaining powers, achieving powers. It's more about getting into love. So yeah, that's how it is. So या सो कई बार आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है और आपको एक मसल डेवलप करना पड़ता है टू नॉट एक्ट अपॉन एवरी ugly thing that you see. Okay, they gonna be people who wanna come to you जो बोलेंगे कुछ और and अंदर कुछ और चल रहा होता है. So you may see it, because you're very high in sensing energies of people, you're very high in your intuition, right? But that doesn't require you to always act upon it, right? I mean, with power comes responsibility, so you have to act also from the place of love. And मैं ये नहीं कह रही कि sometimes you just feel bitter also, inside your heart, because you see so much, feel that bitterness at times. And it's okay to feel that bitterness. It's okay because you're human, right? You can feel hurt, okay? You can feel the bitterness, but you have to really build that muscle of not acting upon it. ठीक है, हमें हमेशा ईगो हमें कैसे हमें प्रोग्रामिंग की जाती है. अरे उसने तुझे ये बोल दिया, यू शुड स्पीक अप, यू शुड स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू शुड, आई डोंट नो. मुझे लगता है कि बहुत सारी ह्यूमन टीचिंग्स अराउंड दिस है, दैट यू हैव टू, इट्स मोर अबाउट शोइंग योर सेल्फ ऑन द आउटसाइड. अपने आप को दिखाओ लोगों को कि आई डोंट नो व्हाट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मतलब बहुत सारी टीचिंग्स बेसिकली ऐसी हैं, वेज ऑफ द वर्ल्ड ऐसे हैं बहुत सारे, that you have to, just don't let anyone pass by. If someone has said something to you, you should react, you should tell him, you should show him his place. That's what we hear, right? But what people don't understand is, अगर मेरी स्पिरिचुअल आई से देखो, मेरी थर्ड आई से देखो, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे एक्ट करना इज स्टिल ईजी. ओके, एक बिटरनेस में एक्ट करना या एक रिएक्शन देना इज़ वेरी ईजी, but building up that muscle, not to act, okay, is also a kind of strength. Yes, sometimes हमें act करना पड़ता है, sometimes हमें react करना पड़ता है, I get it, but not all the times, and a lot of times we shouldn't. Okay, the more you have your third eye open, या आपको एक वो विजडम तो लर्न करनी पड़ती है टू नॉट एक्ट अपॉन इट. ओके, सिर्फ इंट्यूशन होना एक स्पिरिचुअल गिफ्ट या स्पिरिचुअल पाथ नहीं है. हैविंग विजडम ऑफ कीपिंग दैट पावर, ऑफ कीपिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन इज अनदर थिंग. सो या सो वन थिंग इज़ दैट अगर आपके पास इंट्यूशन, अगर आप होन इन कर रहे हो, आप थर्ड आई को होन इन कर रहे हो, सो मेक श्योर दैट यू बिल्ड अप द मसल, नॉट टू एक्ट all the time. Okay, so one thing is that, and
या तो मैंने अपनी टाइटल रखा है टू ट्यून इनटू इंट्यूशन, ठीक है। तो इंट्यूशन हम सबके पास होती है, ठीक है। और इट्स कुछ लोग कम इंट्यूटिव होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं। सो ऑफ कोर्स आप आई रियली बिलीव कि जैसे जैसे आप अपने लेसन्स अनलॉक करते हो वैसे वैसे आपके गिफ्ट्स खुलते हैं, ओके। सो या आई मीन सो हाउ, तो मैंने बोला ट्यून इन टू इंट्यूशन। तो जैसे हमारे पास इन ओल्डर टाइम्स यूज टू हैव दैट एफएम रेडियो, और हम उसे ट्यून इन करते थे, है ना। हम 93.3 पे जाते थे, एंड अभी क्लियर आवाज़ नहीं आ रही होती थी। 93.4 पे जाते थे, इट्स स्टिल अनक्लियर वॉइस, ठीक है, बट बेटर देन बिफोर। एंड देन 93.5 पे जाते थे, तो कैसे एग्जैक्टली इट्स जस्ट नाउ वी कैन हियर क्लियरली, ओके। सो इंट्यूशन भी ऐसे ही होते हैं, you have to tune in, okay? It's about really tuning into yourself, okay? Yeah, yeah, that's how it works, okay? So so tuning into your intuition, so one thing is that, okay. Then the next point that I've written is that yeah, अपना एक सबकॉन्शियस बिलीफ हटा दो कि हम इंट्यूटिव नहीं हैं या हम इंट्यूशन में नहीं आ सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, ओके। बिकॉज मेरे अंदर ये सबकॉन्शियस बिलीफ था, ठीक है, कहीं ना कहीं, कि इंट्यूशन मतलब सिक्स सेंस की तो बहुत ही कम लोगों में होती होगी या कुछ ही लोगों में होती होगी। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई एम समबडी हु कैन बी इंट्यूटिव और समथिंग लाइक दिस। बट क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी को बहुत अलग नज़रिए से देखती थी। मैं स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत ज़्यादा तोड़ा गया, मरोड़ा गया, स्पेशली आफ्टर कॉलोनाइजेशन हैपन, आफ्टर ब्रिटिशर्स केम एंड दे डिस्ट्रॉयड आवर कल्चर अ लॉट। तो खैर, सो मैं भी आजकल एक्चुअली ये बुक भी पढ़ रही थी बाय देवदत्त पटनायक, इट्स मिथ इज़ इक्वल टू मिथ्या, डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी। तो इस बुक, यार मतलब हिंदू माइथोलॉजी में जितना स्पिरिचुअल जर्नी में आई हैव बीन कवरिंग माई स्पिरिचुअल जर्नी, में जितनी स्पिरिचुअल जर्नी कवर कर रही हूँ, मैं उतना रियलाइज़ करती हूँ कि हिंदू myths are so intelligent and they're so smart. I mean, the way I think they're more closer to truth. I really feel that they're very closer to truth. So इसमें भी यही लिखा गया कि कैसे हमारे इतने सारे गॉड्स थे। ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ का मजाक उड़ाया कि we have so many gods and stuff like that. But इससे एक चीज़ पता है क्या पता चलती है, मतलब उन्होंने इतने, हमारे हिंदू मिथ्स में इतने सारे गॉड्स क्यों थे। मतलब इन्होंने ऐसे लिखा है, स्मॉल जी के साथ गॉड, एंड देन बड़ी जी के साथ गॉड, एंड देन गॉड गॉड, एंड देन गॉड गॉड गॉड। बेसिकली ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ओके, ठीक है। कुछ स्मॉलर गॉड्स होते थे, उनके लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती थी। देयर आर अदर गॉड्स हु हैड हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड देन देयर आर so there are levels of consciousness, और जैसे जैसे जिसके जिसके levels of consciousness बड़े होते थे, they were gods and gods and gods, and that's how things were, okay. So I think ये बहुत अच्छी बुक है उस वे में चीज़ों को समझने के लिए। So yeah, it just depicts the levels of consciousness, right? तो सबसे पहले ये सबकॉन्शियस बिलीफ हटा देना कि हम इंसान हैं और गॉड एक अब पेडेस्टल पे हैं, कि गलत है, ओके। इतने सारे गॉड्स इसलिए थे बिकॉज क्योंकि हम सब केपेबल हैं, कोई एक गॉड नहीं बैठा है वहाँ पर आइडल एंड परफेक्ट लाइक दैट। नो, देयर आर मेनी गॉड्स, वी आर वेरी केपेबल ऑफ बिकमिंग गॉड्स, वी आर केपेबल ऑफ हैविंग दीज इंट्यूटिव पावर्स। तो ये सब कॉन्शियस बिलीफ हटा दो पहले कि हम इंट्यूटिव नहीं हो सकते हैं। सो वन थिंग इज़ दैट यू रेज दैट। आई होप मेरी जो से 10 मिनट की रैंट थी, आई एम श्योर आपका वो सबकॉन्शियस बिलीफ चला गया होगा अभी तक। सो वन थिंग इज़ दैट, एंड द अदर थिंग इज़ स्टार्ट लिस्टिंग टू शॉर्टर इंट्यूटिव इम्पल्सेस। तो पानी पीना भी एक आपकी बॉडी आपको इंट्यूशन भेज रही है कि पानी पीना है, ठीक है। भूख लग रही है, अंडरस्टैंडिंग कि वो कहाँ से आ रहा है। हंगर इज़ कमिंग फ्रॉम माइंड, क्योंकि मैं एक टाइम पे थोड़ा सा आई हैड ईटिंग डिसऑर्डर्स, सो मैं मूड के हिसाब से खाना खाती थी एंड नॉट व्हेन आई वाज फीलिंग हंग्री,
राइट. सो अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी. ओके, हम बहुत ज़्यादा माइंड से कनेक्टेड हो जाते हैं. आप देखो बहुत सारी complexities हो रही हैं, राइट, लाइक डिप्रेशन, पीपल आर गोइंग टू डिप्रेशन, पीपल आर हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड स्टफ लाइक दैट. व्हाई डू यू थिंक इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज we are too connected to the mind that we have lost connection with our own bodies. Okay, अब जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो एक स्टेट ऑफ माइंड, एक थकेला स्टेट ऑफ माइंड है, राइट, तो सबसे पहले आप वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डेजर्ट्स ठूसना स्टार्ट कर देते हैं. दे स्टार्ट ईटिंग डेजर्ट्स, दे स्टार्ट हैविंग शुगर्स मोर एंड मोर, एंड दे डिस्ट्रॉइंग देयर बॉडी मोर एंड मोर. ओके, सो एक्चुअली आपकी इंट्यूशन अच्छे से तब काम करती है जब आप कम खाते हो. ओके, आप गुड फूड्स लेते हो, आप मोर अलाइव फूड्स लेते हो. ठीक है, सो फॉर लाइक फ्रूट्स फॉर एग्जांपल, राइट, वेजिटेबल्स फॉर एग्जांपल. मैं ऐसे बोल रही हूँ और मैं खुद बहुत सारी सब्जियाँ नहीं खाती हूँ ऑनेस्टली. बट आई लाइक फ्रूट्स बट आई डोंट ईट ऑल सब्जियाँ व्हाटएवर. सो आई एम ट्राइंग टू ईट and I am trying to, not eat junk food and stuff like that. But yeah, so this is truth. ठीक है, तो what do you feed your body? Because intuitive impulses body से कहीं ना कहीं आते हैं. ठीक है, most of the time. Okay, like there are certain places and things and people you won't want to be around. Okay, you would just want to run away. Those impulses sometimes come from your body. Okay, so yeah, body is that vehicle or medium of your intuitive impulses. So keep your body right. Okay, सदगुरु ने एक बार ये बताया था कि अगर आपको परसेप्शन, जो मेरे भी गुरु हैं, उन्होंने इसे बताया था कि अगर आपको परसेप्शन इम्प्रूव करना है, सो स्टॉप ईटिंग चीज़. एंड लव चीज़ दो, बट नो. So yeah, I mean, so there are certain kinds of foods, which are very bad for your perception, for your third eye. Okay, for intuition. So for example, cheese. So keeping your body right, having right foods is very important. Okay, so start like listening to your shorter intuitive impulses. अपनी body के साथ connect करो. अपनी जब भी आप, क्योंकि intuition का एक law है, ठीक है, आप उसको पहली बार में सुन लेते हो, वो एक शॉर्ट सा बहुत सॉफ्ट सा वॉइस है जो आएगा एंड देन चला जाएगा. ठीक है, आपका माइंड अलग तरीके से काम करता है. आपका माइंड ऑब्सेस हो जाता है टुवर्ड्स सर्टन थिंग्स. इट जस्ट गेट्स वेरी स्टिकी एंड इट्स लाइक ये प्रॉब्लम तो आज के आज ही सॉल्व करनी है. इट जस्ट समटाइम्स गेट्स वेरी स्टिकी एंड जस्ट वॉन्ट्स टू डू इट वेरी क्विकली एंड स्टफ लाइक दैट. बट इंट्यूशन एक सोल का भेजा हुआ इम्पल्स होता है. सो हाउ इट वर्क्स लाइक आप it gives you a little small soft nudge. Okay, and you listen to it. Either you act upon it or you don't act upon it. Okay, if you don't act upon it, तो वो वो इंट्यूशन धीरे धीरे मरने लग जाती है. That goes through a death. Okay, and it's a very soft thing. It will just come and it will just go. Okay, आपने कई बार देखा होगा, अगर आपको कोई प्यास लग रही है और आपने उस वक्त पानी नहीं पिया है, तो आपको काफ़ी टाइम तक प्यास नहीं लगेगी. एंड नेक्स्ट टाइम आपको अलग से बहुत टाइम के बाद आपको पता चलता है, ओ मैंने पानी नहीं पिया था, समथिंग लाइक दिस. तो इंट्यूशन ऐसे वर्क करती है. तो जब भी आपको इंट्यूशन आती है, स्टे अलर्ट, ऑलवेज स्टे इन योर इंटेंस एंड सेव योर एनर्जी, कंजर्व योर एनर्जी. ज़्यादा लोगों में दिमाग मत लगाओ यार, लिटरली. थोड़ा सा दैट्स वाई पहले के लोग केव में चले जाते थे, तपस्या करते थे, बिकॉज या लोग बहुत एनर्जी खाते हैं, चीज़ें बहुत एनर्जी खाती हैं. आपकी एनर्जी बहुत खाते हैं. जब आपको इंट्यूटिव इम्पल्सेस आते हैं तो वो एनर्जी नहीं बचती है हमारे अंदर, वो पाथ को चलने की, है ना, जो हमारा इंट्यूशन हमें चाहता है कि हम चलें, वो पाथ चलने की हमारे पास एनर्जी रहती ही नहीं है. पहली बार तो हमारे पास वो एनर्जी नहीं रहती है इंट्यूशन समझने की, इंट्यूशन को देखने की. बहुत हाइटेंड काइंड ऑफ एन अवेयरनेस चाहिए होती है इंट्यूशन को भी समझने की. क्या इंट्यूशन है, क्या हमारी फियर है, क्या हमारा ईगो है. ठीक है, तो व्हेन यू गो थ्रू एन ईगो डेथ, जब आप अपने आप को थोड़ा सा समझ लेते हो, थोड़ा सा यू गेट इन टू लिटिल बिट ऑफ अनकंडीशनल लव, तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन आना स्टार्ट होती है. ठीक है, तो बहुत हाइटेंड अवेयरनेस चाहिए होता है उससे पहले तो इंट्यूशन को समझने के लिए. फिर एक बहुत काइंड ऑफ एन एनर्जी और बहुत काइंड ऑफ एन अवेयरनेस क्या, एनर्जी तो है बेसिकली. ठीक है, तो आपको एक और अलग काइंड ऑफ एनर्जी चाहिए होती है टू रियली फॉलो योर इंट्यूशन. तो जब आपको इंट्यूशन आ रही है तो आप उस वक्त एनर्जाइज स्टेट में होने चाहिए.
आप बट लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। आपकी जॉब्स, आपकी हाँ, आपके आसपास की जो चीज़ें जिसमें आपने अपनी टांग अड़ा रखी है बहुत सारी चीज़ों में, अपने लोन्स ले रखे हैं, एक बैकग्राउंड में एक लोन की टेंशन है कि यार वो लोन चुकाना है, या फिर कोई ईएमआई है, या फिर सम टेंशन यू आर इनटू, इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट you conserve your energy and don't get into things that are not necessary, right? Conserve your energy ताकि जब इंट्यूशन आए आपके पास एनर्जी बचे to walk that path, okay? तो मेरे साथ तो ऐसा होता था बहुत बार कि मुझे पानी पीना होता था, बट आई नेवर यूज टू ड्रिंक वाटर। मतलब आई वॉज वेरी लेजी, आई वॉज वेरी मच इन अ थकेला स्टेट ऑफ माइंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो फिज़िकल एक्सरसाइजेज भी बहुत चीज़ें चेंज कर देते हैं। फिज़िकल एक्सरसाइज में मैं योगा करती थी, जो हाथा योगा होता है बेसिकली। सो आई जस्ट रैंडम यूट्यूब थिंग, आई नेवर डिड समथिंग रियली प्रोफेशनल और समथिंग। तो या it just really helps. The days I did yoga, I don't do it anymore because I don't know why, but whenever I started to do physical exercise something, मैं थोड़ा अपने माइंड से डिस्कनेक्टेड होती थी और मैं अपनी बॉडी के अंदर आती थी। बॉडी को गर्मी लग रही है, दर्द हो रहा है इस जॉइंट में, उस जॉइंट में, और मसल पेन हो रहा है समथिंग। सो व्हेन यू कनेक्ट टू योर बॉडी, you disconnect from your mind for a while, and you and suddenly I felt like eating healthier foods. मैं दलिया खाती थी उस दिन यार, and I'm such a person who would just go out every day and would just eat गोलगप्पा तो एटलीस्ट नहीं, मजाक कर रही हूँ, इतना नहीं हो रहा, बट मैं दलिया खाती थी। मतलब मेरे लिए शॉकिंग था यार, मैं दलिया खा रही हूँ। तो मैं अच्छे फूड खाती थी। सो समथिंग यूज टू हैपन, माई इंट्यूटिव इम्पल्स यूज टू ग्रो स्ट्रॉन्गर, बिकॉज those were those days, okay? So yeah, moving your body is also very um, can be very helpful, okay? Yeah, I think I've discussed some points. Yeah, okay. One thing is doing things that you like. ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, राइट? एंड बहुत हेल्पफुल भी है। तो वो चीज़ें करनी स्टार्ट करो जो आपको पसंद है, ठीक है? किसी और के लिए नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो जो फ्रेंड सर्कल में जो ट्रेंड चल रहा होता है, जो फ्रेंड सर्कल में जैसे लोग कर रहे होते हैं ना, तो लोग वही करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि यार आसपास के लोग ऐसे कर रहे हैं ना, तो मतलब बहुत सारे लोग बाहर से मैं देखती हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में भी। इवन बहुत बड़े बड़े मेजर लाइफ डिसीजंस भी वो यही देख के करते हैं कि फ्रेंड सर्कल में क्या हो रहा है। तो आई थिंक दैट्स जस्ट कम्प्लीटली हार्मफुल, ओके? इट्स कम्प्लीटली हार्मफुल फॉर योर ओन सेल्फ। तो वो चीज़ें करनी स्टार्ट करो, धीरे धीरे वो चीज़ें समझना स्टार्ट करो, वो चीज़ें करना स्टार्ट करो जो आप करना चाहते हो, जो आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है? और वो छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है, वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो सकती है, बट वो छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है, ठीक है? डोंट केयर अबाउट व्हाट। पहले तो फ्रेंड्स बदल लो यार। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स आर, आई डोंट नो अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स थोड़े से ऐसे हैं, या दे आर ट्राइंग टू, आई डोंट नो व्हाट, यू नो बेटर, राइट? सो व्हाट आई रियली मेंट टू से इज़ दैट डू थिंग्स दैट यू लाइक, ओके? अगर आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको पीयर प्रेशर बना रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, जस्ट डिस्कनेक्ट फ्रॉम दीज पीपल यार। इट्स जस्ट सो इम्पॉर्टेंट दैट, या फिर आपको समझते नहीं हैं, या फिर दे मेकिंग फन ऑफ यू और समथिंग लाइक दैट। इट्स फाइन, इट्स फाइन। इतना कुछ ऐसे डिस्कनेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। डिस्कनेक्ट, आई डोंट नो, इट्स जस्ट अप टू यू, बट जस्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट यू रियली लाइक, ओके? It could be as simple as wearing something stupid, or just posting a very stupid picture of you on Instagram. तो कुछ ऐसी चीज़ें करो, जो मैं तो ऐसी चीज़ें करती थी ऑन अ सीरियस नोट, जो मुझे पता है कि लोग ऐसे थोड़ा सा समझेंगे कि यार ये पागल है, या ये थोड़ी वियर्ड है। तो मैं ऐसी चीज़ें करती थी, बिकॉज कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जस्ट मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्गर इन मैनी वेज। इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एज इफ वैसे ये भी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बट इट वॉज जस्ट माई वे ऑफ रेबल, इन माई ओन वे। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये चीज़ें ही करो, बट हाँ, एक पॉइंट पे मेरे लिए एक काइंड ऑफ रेबल था। आई जस्ट वॉन्टेड टू या आई वॉज जस्ट बिल्डिंग अप माई मसल कि मैं वो चीज़ें नहीं करूँगी,
लोग सोशल मीडिया पे आपकी एक बहुत अच्छी पिक्चर दिखना चाहते हैं, आपकी एक बहुत एक सर्टेन इमेज होनी चाहिए आपकी। एंड आई हैव सीन पीपल कीपिंग अप देयर इमेज इन फ्रंट ऑफ पीपल। सो या, तो मुझे थोड़ा सा छल्ला बन के रहना पसंद था। मैं चाहती थी कि लोग मतलब आई जस्ट यूज्ड टू प्ले अ लिटिल फूल ऑफ माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल। आई लाइक दैट, आई लाइक डूइंग दैट, बिकॉज दैट मेक्स यू लिटिल डिटैच्ड, कि और आप प्रैक्टिस करते हो कि आप प्रैक्टिस करते हो कहीं ना कहीं कि आपकी ईगो इतनी बड़ी नहीं है। यू प्रैक्टिस इट समवेयर। सो आई वॉज काइंड ऑफ अनकॉन्शियसली मैं कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रही थी कि मुझे अपनी कोई इमेज नहीं बनानी है लोगों के सामने। एंड और मैं कहीं ना कहीं मैं खुद ही चाहती थी लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करें। तो मैं चाहती थी बेसिकली मुझे अंडरस्टैंड करें, इसलिए मैं ऐसी बहुत सी चीज़ें करती थी जो बहुत अलग होती थी। बट पीपल जस्ट नेवर टुक द पेन टू अंडरस्टैंड। पीपल आर वेरी कन्वीनियंट, दे लाइक डूइंग लिटिल। वो अपने लिए भी नहीं करते यार, दूसरों के लिए तो छोड़ो, वो अपने लिए भी नहीं करते हैं। तो मैं उनको क्या ही ब्लेम कर रही हूँ, और मैं क्यों अपनी चीज़ें इतनी पर्सनल चीज़ें बता रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो व्हाट आई रियली मेंट टू से इज़ दैट या डू थिंग्स दैट यू लाइक। दोस्तों के लिए, दोस्त जैसे कर रहे हैं, या आसपास के लोग, या सोसाइटी, या फिर खुद के पेरेंट्स जैसे आपको चाहते हैं आप करो चीज़ें, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो हर चीज़ वो ही मत करो जो वो लोग चाहते हैं, मतलब वो तो एक बहुत ही एक्सट्रीम रेबल हो जाता है। बट अपने आप को समझो, ठीक है, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप करना चाहते हो। ओके, मैं और हमारा स्कूलिंग भी ऐसी है कि हमें हमसे दूर ले जाती है, रादर हमें अपने पास लेके आए, हम हमसे दूर ले जाती है। तो मुझे स्कूल में कभी भी आर्ट पसंद नहीं थी, कभी भी आर्ट पसंद नहीं थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था कि एक तो हमें कॉपी क्यों करना है आर्ट। मुझे लगता था आर्ट का पीरियड तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बट वो भी इतना बोरिंग और फ्रस्ट्रेटेड लगता था मुझे लगता था कि मुझे बस गुजर मुचड़ करने दो कॉपी में और बुक में, एंड आई कलर दैट आउट। और मुझे बहुत गुस्सा आता था कि कलर बिटवीन द लाइन्स क्यों करना है, और इसमें यही वाला कलर क्यों करना है। मतलब मुझे स्काई को करना है यार, मुझे येलो कलर करना है, तो मेरे को ब्लू ही क्यों करना है। मतलब मुझे गुस्सा आता था इन सब चीज़ों पर बहुत, ऑनेस्टली बोलूँ तो। मुझे आर्ट का पीरियड भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगता था। मुझे और फ्रस्ट्रेटेड इसलिए लगता था कि आर्ट का पीरियड था जहाँ पे हम फ़न कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, और वहाँ पे भी हमें नहीं करने दिया जाता था। तो थैंक्स टू ब्रिटिश वाली एजुकेशन सिस्टम, या मतलब बर्बाद कर दिया हमें पूरा उसने। गुस्सा आता कभी तो मिल गए ना, पास में जाके मुंह तोड़ दूँगी इन लोगों का। तो या खैर, गुस्सा चाहता है मुझे कभी कभी, इट्स ओके फाइन, व्हाटएवर। सो या, डू थिंग्स दैट यू लाइक। ओके, तो मुझे आर्ट कभी पसंद नहीं आता था, बट मुझे नहीं पता, मतलब मैं जब कॉलेज में आई एंड आई डोंट नो, जस्ट स्टार्टेड पेंटिंग आउट ऑफ नो वेयर, एंड आई लाइक पेंटिंग। और मेरी पेंटिंग तो समझ में नहीं आती थी। Nobody liked my painting, मुझे समझ नहीं आती क्या बनाया है, क्या करें, what are you doing? So I just painted, I just sat with colors and just painted, and मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि मैं अपनी ट्यूशन से कनेक्ट हो रही हूँ, और मैं होती भी थी। ओके, और मैं समझा नहीं पाऊँगी, बट या वो बहुत इंट्यूटिव एक्सपीरियंस होता था, मैं अपनी ट्यूशन से कनेक्ट होती थी। तो ऐसी चीज़ों से आप आप छोटी छोटी चीज़ें करके अपनी ट्यूशन से कनेक्ट होते हो, अपने आप से कनेक्ट होते हो, अपने अपने सबकॉन्शियस, अपने अनकॉन्शियस, अपने सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हो। सो डू दीज थिंग्स, ओके। सो डू थिंग्स दैट यू लाइक, ओके। मुझे सितार अच्छा लगने लग गया था। आई डोंट नो, व्हेन आई कनेक्टेड विद माई सेल्फ, मुझे से बहुत सारी थिंग्स आई कुड रिमेंबर, एंड दैट आई लाइक्ड, ओके, मे बी इन माई पास्ट लाइफ, आई डोंट नो, वाओ। It's a little scary that, okay, I don't know what, but yeah, I don't know, I like sitar, and I just liked painting, and yeah, I liked all these things. So yeah, so start doing things that you like. Okay, maybe it's cooking for you, okay, maybe it's something else for you, so do things that you like, okay, and don't think about what other people would say to you, or what other people want to think about you. Just do what you like, okay, with something that comes from a pure heart of, and you feel it's joyful for you. Just do things that make you happy, okay. हमें प्रोग्राम किया गया है यार कि इसी डिग्री के बाद तुम्हें खुशी मिलेगी, या इसी इसी जॉब के बाद तुम्हें खुशी मिलेगी, या इसी रिलेशनशिप के बाद तुम्हें खुशी मिलेगी। नहीं यार, इट्स हैप्पीनेस इज़ ऑलवेज देयर, हैप्पीनेस इज़ ऑलवेज देयर अराउंड अस। हमें वो मोमेंट्स चाहिए टू सीज इट, लिटरली वी नीड दोज मोमेंट्स टू सीज इट।
ट्रस्टिंग योर सेल्फ, ओके, ट्रस्टिंग योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला, मैं खुद अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं खुद बिलीव करने लग गई थी जो लोगों के इंप्रेशन थे अबाउट मी, तो मैं अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाती थी। So they thought of me as a little silly and stuff like that, right? And I mean, of course, I am a little silly, and they are not completely wrong about it. But yeah, it just delayed my spiritual journey also in some ways. Okay, so yeah, I mean, it's so important that you start trusting yourself. तुम इतने भी बुरे नहीं हुए आज तो तुम्हें लगता है ठीक है, एंड हाँ, तुम इतने अच्छे भी नहीं हो जितना तुम्हें लगता है, बट या जितना जितना आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं आपको और समझ आता है कि God created you with really a beautiful heart, and it's so important that you preserve it. Don't let anyone's bitterness, anyone's hatred, anyone's impressions of you change that about you. So start trusting yourself. मैंने भी अपनी इंट्यूटिव गाइडेंस पे ट्रस्ट नहीं किया था, जब मुझे मिलती थी। I was like, मैं पागल हूँ, I was like, मैं weird हूँ. But yeah, it's been a journey since then. So don't do that mistake that I did and delayed my journey. So yeah. Yeah, I think that's it. I hope so. Yeah, do let me know in the comment section if you like the video or not, and if you have any tips, you can give it in the comment section. Thank you for watching.